سننا اور سوچنا سیکھا ہے. میں ابھی جو بھی بولتا ہوں یا سوچتا ہوں یہ میں نے ان کی شخصیت سے سیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے ہاں بولنے اور سوچنے کا ماحول نہیں تھا. میں آج بالکل اینکری نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بلکہ یہاں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور میں بخدا آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں کہ مجھے کون سے سوالات اٹھانے چاہیے. تو برائے مہربانی مجھے ایجوکیٹ کیجئے تاکہ میری جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں میں کوئی ڈھنگ کا صحافی بن پاؤں جو آپ کو کمیونیکیٹ کر سکے. تو اب میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بہت فارمل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب میں نے ان سے انٹریکٹ کیا، تو آپ جو تھوڑا سا ریبیلین یا تھوڑی سی ذرا آپ ریج یا غصہ کو دیکھیں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، یہ نہیں ہوگا جی. آئی ایم دا بیڈ انفلوئنس آن دیز گائز. اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی. تو صرف اتنا ہے، یہ تمام لوگوں نے زیادہ تر جو سوالات کیے ہیں دے آر جینوئنلی کین، کہ بیکاز آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کا کیریئر، ان کا مستقبل، روزگار ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو دے وانٹ، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا اس کے بعد صرف دا فلور از اوپن ٹو دیم. وہ یہ ہے کہ آپ انہیں کسی طرح یہ سمجھا پائیں، بیکاز دے سیم ایکسٹریملی ایجیٹیٹڈ میرے ساتھ انفارمل انٹریکشن میں، کہ جی ہمارا مستقبل، ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارے روزگار کا کیا ہوگا. تو پلیز اس کو آپ اگر مختصر ترین الفاظ میں ایڈریس کر دیں تو دین دا فلور از اوپن ٹو دیم. فرسٹ آف آل مسجد صاحب آپ کا شکریہ. میں زابس کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، سب سے بڑھ کر جو طلبہ میرے سامنے آج موجود ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں شروع اپنا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک پورا منشور بھی تیار کیا ہے الیکشن کے لیے، لیکن جس سیگمنٹ سے میں جس کا میں بہت پیشنیٹ ہوں، میں اس کے بارے میں آپ سے بات تفصیلاً میں کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے. اس کو میں نے خود تیار کیا. میں نے چند ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے، جن سے ہم نے جب حکومت میں تھے کام لیے تھے، جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانے کی بات تھی، یا حکومت سندھ میں جو غربت کا مقابلے کرنے کے کچھ منصوبے ہیں ہمارے، یا سوشل پروٹیکشن منصوبے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم انگیج کرتے. ان کے ساتھ میں نے یہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا، اور ہم نے جو پاکستان کے جو ہم سمجھ رہے تھے مین ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو پہلے ہم نے آپس میں بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سے ایشوز ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے مین ایشوز ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے ساتھ ساتھ ہم نے موسمی تبدیلی، اس لیے ہم تو میں ایکچولی انہی لوگوں کے ساتھ جو سیلاب متاثرین کے لیے کچھ منصوبے ہمارے ہیں ان کے ساتھ ان پہ بھی بات کر رہے تھے. تو ہمارے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. سو اف وی ڈیوائڈ، کہ پاکستان میں تو ویسے بہت سے مسئلے ہیں، لیکن if we want to distill them down to the two that I identified for myself، کہ اب آگے جا کے نہ صرف آج پھر آگے جو 50 سال ہے اس میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے اہم ایشوز ہیں. تو ایک ہمارا معاشی بحران، اور دوسرا جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان واقعی خطرے میں ہے. اور مجھے تو، میں آکسفورڈ سے پڑھا لکھا ہوں، مگر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے وہ تب مجھے سمجھ میں آیا جب پچھلے سال ہم اس بہت ہی بڑا قدرتی آفت جو سیلاب تھا اس سے گزرے. بعد ایکسپرٹ سے دنیا بھر میں انٹریکٹ کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ آفٹر دی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ پول، the largest collection، and اگر کوئی گلگت بلتستان سے یہاں موجود ہے تو ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ the largest collection
of snow and ice anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. तो इसका मतलब ये है कि जिस मौसमी तब्दीली के बारे में पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि इसलिए द नॉर्थ एंड द क्लाइमेट चेंज की वजह से द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर गोना बिगिन टू मेल्ट, और उसके जो असरात होंगे मुख्तलिफ ममालिक पे, हमारा वे ऑफ लाइफ पे, हमारा हेल्थ पे, हमारा सिटीज़ पे एक्सेट्रा, वो तो उस पर देख रहे हैं। नेचर को क्या ख़तरा होगा इससे, हमारे पोलर बेयर्स को, हमारे पेंगुइन्स को। मैंने ये कभी कहीं नहीं सुना कि क्या बनेगा of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, जैसे ये हमारे ये बर्फ पिघलेगा, और फिर उसके बाद by perpetual drought. तो इस इशू के बारे में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपके सियासतदान मगर हम सब का ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को इस इशू के बारे में और कि हम कितने ख़तरे में हैं इस इशू के बारे में समझाएं, मगर हम दुनिया भर में ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है। हम 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के कार्बन एमिशंस में, और हमारे तो सर्वाइवल इज एट स्टेक, एंड हम अपने भी पूरा फोकस अपने आप को इस खतरे से बचाने पे लगा दें और दुनिया के साथ मिलकर, इसलिए किसी एक मुल्क का तो बस की बात नहीं है, ये हमारे रीजन का और फिर पूरी दुनिया के साथ मिलके हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक तरफ एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस और साथ साथ जिन मुश्किल मुआशी हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं वो आपके सामने है। मैंने अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा में इंक्लूड किया है, वन ऑफ द मोस्ट स्टार्केस्ट एग्जांपल्स इज कि 8 years ago if a family had a joint income of 35,000 rupees, तो फिर वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना भी खिला सकते थे, तालीम भी दिलवा सकते थे, रिक्रिएशन या इमरजेंसीज में अपने बुजुर्गों का इलाज भी करवा सकते थे। आज अगर वही काम करना है तो कम से कम आपका जॉइंट इनकम 70,000 रुपीस का होना है। अब 8 साल में लोगों का तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ, लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं होगा, तो इन हालात में हम क्या करें? हमने बैठ के सोचा और समझा कि जो रिवायती तरीक़ेकार है इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप अपने इशराफिया को फैसिलिटेट करें कि जो अमीर लोग हैं वो मज़ीद पैसा कमाएं, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर खुद ब खुद वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है किसी तरीके से ये मुआशी फ़ायदा हमारा निचले तबका तक पहुँचेगा। कि ये अब साबित हो चुका है कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार है, और जो तरीक़ा कामयाब हो सकता है वो ये कि अगर आप अपना पसमानदा तबकात को, अपने निचले तबकात को, आम आदमी को एम्पावर करिए उसी रिसोर्सेज के साथ, तो वो रिसोर्सेज आपका ज़्यादा काम आएगा और आपकी मईशत की तरक्की ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए जब हमने हमारे फिगर्स को एनालाइज किया तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात था कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वजारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए।
اور سالانہ جہاں ہم اس معاشی کرائسس میں ہے more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفاقی بجٹ سے اشرافیہ کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کتنا سبسڈیز ملتے ہیں ہمارا ملک کی اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو، وہ 1500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. اس کا جو موڈس اپرینڈائی ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا. ہمیں if you compare قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا. آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنس. اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر میں اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے. ہم سو کالڈ گرین جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں. اگر ہم نے اتنا، I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you، کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں، میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارا اکانومی میں، ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کی وزارتیں ختم کر دیں گے، ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے، تو ایک پاورفل سیکٹر سے پاورفل ریاکشن آئے گا. مگر اس لیے کہ حکومت اسی پیسہ کو عوام پہ خرچ کر رہی ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، چاہے وہ ہمارا مزدور کارڈ کے تھرو، چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا نوجوان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا سولر ٹرانزیشن کو یقینی بنانے کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی کے تھرو. اس طریقے سے تو پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی چیخیں نکلتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی کے اور ہمارا اشرافیہ سے، ان کا کوئی
فرق نہیں پڑے گا, اس لیے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا لمبا میں نے ایکسپلینیشن کیا, یہ بڑا سمپل میرا تھاٹ پروسیس اس عوامی معاہدہ کے پیچھے ہے. یہی وہ نیا سوچ ہے جس سے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریشنالٹی میرا یہ اس پہ جو ہمارا ریشنالٹی ہے, جو ہمارا ایشوز ہوں گے وہ آپ ضرور سوال کریں. بٹ دس از مائی کیس بفور یو اینڈ دا پیپل آف پاکستان کہ مشکل وقت ضرور ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, بٹ فار بگ پرابلمس وی کین پرپوز some simple solutions. I thank you. بلال صاحب, you would be surprised to know کہ جب میں ان لوگوں سے انفارمل ایکشن کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک لیڈی تھی who is from جو گلگت بلتستان کی تھی. کھڑی ہو جائیں نا, کوئی ایسی بات نہیں, کیوں گھبرا کیوں گئی ہیں؟ ہاں, السلام علیکم. انہوں نے یہ کہا تھا, فرسٹ تھنگ شی سیڈ, انہوں نے کہا جی کہ میں آپ پوچھو کیا سوال کیا تھا. السلام علیکم, میرا نام آصفہ افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاءاللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کویشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے واٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. تھینک یو. اچھا, ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں. میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں, اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ women سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کے کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen, جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ we need to now end جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا, ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا, کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک
क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाना है। हम कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पाकिस्तान का, मगर इसलिए कि आपका सवाल वहाँ से था, हम कैसे अब अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं अच्छे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडेप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है। हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद में। एंड वैसे ही मैं समझता अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे एनीवे। एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे। तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोज़ल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, आवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोज़ल है जिसका काफ़ी तनकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोज़ल है वो ये कि हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलूचिस्तान या हमारा जेकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी बिलावल साहब, आई एम सॉरी, इस तरह बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी, ओके फाइन, प्लीज लेट्स डू मुझे यहाँ पे एक खातून गालिबन लास्ट में थी, वो बैठी हुई, I'll keep short answers। इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नई सोच को, उसके रेफरेंस में इनको कोई पीपल्स पार्टी का नारा याद आया था, तो आप बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं। एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज़, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं। जी जनाब अली। हाँ, Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda, or makan?
बिकॉज मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please I would like you to shed some light on it. थैंक यू. तो आई होप कि एक तो आई होप कि जहाँ तक रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी कपड़ा मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते. मैंने मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में. मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ. मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ. उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं आप सब के साथ में वो देखता आ रहा हूँ, और मुझे एक मायूसी महसूस होता है, और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तक़सीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है, और इस नफ़रत और तक़सीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तक़सीम किया है. हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुँच गई है कि इट इज़ क्रिपल्ड हमारा जो, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा. और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे उसी पे अमल दरामद करना है कि मेरा हुकूमत बने तो मैंने अपने मुखालिफ को जेल में डालना हूँ, और सब जो मेरे साथ है वो तो अच्छे, जो मेरे साथ नहीं है वो तो गद्दार या जो भी. और अगर इसी तरीके से हमने सियासत करना है, आगे जा भी यही होना है कि जो भी इलेक्शन जीतता है तो वो इस किस्म का सियासत करे, और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में, हमारे निज़ाम में चलने से. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, it's not as sexy, but climate change का जो खतरात हमें हैं, शायद किसी और मुल्क को इतना खतरा हो. तीसरी तरफ जो आपका दहशतगर्दी के और दहशतगर्द जो एक बार फिर सर उठा रहे हैं इतने अरसों बाद, वो भी आप सबको नज़र आ रहे हैं. अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें. और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे, 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफ़रत और तक़सीम में इजाफ़ा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफ़ा होगा, और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे. यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर हुकूमत में आया, मैं अगर इस मुल्क की जो 8 फरवरी को इलेक्शन है मैं वो जीतता हूँ और वफाकी हुकूमत बनाता हूँ, मेरा कोशिश ये होगा कि मैं ये नफ़रत और तक़सीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके आगे बढ़े, और अपने दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारा एक सोच है, जो ना सिर्फ मेरा सोच है, मेरी वालदा के दौर में हमेशा से ये रहा है कि हम ना कोई सियासी कैदी को कैद में रखेंगे, ना हम किसी मीडिया चैनल नुसरत जावेद साहब या कोई और के ख़िलाफ़ कोई पाबंदियाँ डालेंगे इसलिए कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा. और इसी तरीके से इस नई सोच के साथ मेरा उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में
एक हम उस सिमत पे चलेंगे जिससे हम तरक्की कर सकेंगे, जिससे हम सब मिल के मसाइल के हल निकाल सकते हैं, जिससे हम ये मान लें कि सियासत में सियासी इख्तलाफ होगा, इख्तलाफी राय होगा, मगर इसका ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करें। तो ये मेरा कोशिश है और यही मेरा नई सोच की नारे के पीछे जो फ़लसफ़ा है। आप ये ना समझें कि मैं रोटी कपड़ा और मकान की जो बुनियादी सोच है, जो हमारा नज़रिया है, उसी को एक sort of बेस बना के हम अपने मंशूर मैंने ये तैयार सवाल करते हैं। इसलिए मेरे दिल को लगा कि 67 68 में जब मैं अभी स्टिल आई वाज इन स्कूल, तो मैं खुद भी उन नारा लगाने वालों में से होता था। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, एंड आई एम ग्लैड कि आप के इस नस्ल को भी याद है। अब चूँकि आपने इजहार राय वगैरह की आज़ादी की बात की और सवालात जो है ना, ये मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं। नहीं इसके बाद तुम्हारी ज़ैनुल आबिदीन, ये इनका सवाल चूँकि आपने आज़ादी राय की बात की है, तो इनकी एक बात जो है, आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट आस्क दिस। Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. क्या हमें आप थोड़ी मिसाल दे के भी बता सकेंगे कि कैसे न्यू पीपल्स इकोनॉमी पाकिस्तानियों की? आप तो कुछ और वो यानी मुश्किल वाला सवाल कर रही थी जिसमें नहीं फील्ड वील्ड आई सर थी। वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला। वो वाला पूछे ना, फील्ड वाला जिसमें आया था ना वो जिक्र। हाँ राइट। सो न्यू पीपल्स इकोनॉमी कैसे पाकिस्तानियों की मदद करेगी बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई से निकलने में? अगर आप हमें थोड़ी मिसाल देंगे। बीबी आपने ओरिजिनली अब उनको अपना सवाल पूछने दें। नहीं This was my question. This was my question, sir. This was my question. Yeah, this was अच्छा, it. लेकिन ये चूंकि इसको वो काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। अच्छा Yeah, ज़ैनुल a bit of आबिदीन, मैं explain, इसलिए yeah. कह रहा हूँ कि सर आपकी रिपीट ना हो, कोई नए इश्यूज आ जाएं। ये वैसे मुझे इन्होंने तासुर ये दिया था। बहुत जल्दी एक let me try and answer the question very quickly. एक तो जो मैंने explain किया, जो मेरा specific proposals voteter.com पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो 10 नुकात में से मैं चंद नुकात को आपको समझाना चाहूँगा जिससे मैं समझता हूँ कि हम आवाम को मदद पहुँचा सकते हैं। वैसे जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल का प्रपोजल है, हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है, हमारा अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ जीडीपी को 12% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाने का जो वादा है, इससे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मगर रोज़गार के मौके प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो वो सब्सिडीज़ जिससे मैंने अशराफिया से लेके डायरेक्टली अवाम को पहुंचाना है, उसमें बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा के साथ साथ ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े दिलवाने के वादा हमने किया है, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी किरदार अदा कर सके मईशत में। हमने इसको पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से सूबा सिंध में शुरू किया है, जहाँ 1 लाख ख़वातीन इस मंसूबे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा मज़दूरों के लिए प्रपोज़ल है कि हम जब डिवॉल्व करेंगे वो 17 वजारतें, उनमें से EOBI इंशाल्लाह ताला डिवॉल्व होगा और हम इसको अब एक्सपैंड करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए। और उसमें हमने ये बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का कॉन्सेप्ट अपनाया है, जिससे हम चाहते हैं कि तमाम मज़दूर, चाहे वो हुकूमत के इदारे में, प्राइवेट सेक्टर के इदारे में, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी के घर पे काम करें, आप किसी दुकान पे काम करें, that they can all benefit from our labor policy, register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim जो facilities हम सेहत के लिए, इल्म के लिए जो support labor के लिए दिया जाता है, उसको हम इस expanded definition of labor को भी यही support दिलवाते हैं। और हमारा कोशिश ये हो कि अब इसको यकीनी बनाएं कि मज़दूर को मेहनत का सिला मिले और उनका फ़िक्र सिर्फ ये हो कि मैं मेरा कि मज़दूरी करना है, उसके अलावा उनके बच्चों की तालीम हो, उनके बुज़ुर्गों का सेहत हो, हम उन चीज़ों को कवर करें। इसी तरीके से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए हमने
ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज किया है जिससे हम समझते हैं हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं या एक किस्म की माली मदद और तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी को पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, मैं आपको एक बात से आगाह करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं ना जी, ये एक लिमिटेड है बिकॉज ऑफ आवर यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेशंस। इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं Oh, wow. इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊं, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है। आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो इसलिए प्लीज़ बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन मेरिट, एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ ज़ैन, आपको सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा। तो वो देखें, मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह है, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं, वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो। और जो ख़तरे हमारा ओवरऑल मुल्क की रियासत की मीशत का है इंटरनेशनल डोमेन में, वो शायद इतना वनरेबल हमारा मुल्क कभी नहीं रहा है जितना आज है। अनफॉर्चुनेटली जबकि ये हालात चल रहे थे, दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला। दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल economic policy और economic contribution etc. जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो let me conclude, sorry, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना मुआहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने मुआहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है।
مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کی پروگرام ریوائیو ہوا، وہ سو کالڈ ڈیفالٹ سے ہم بچے، اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت دو چیزیں ہو رہے تھے، سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا، دوسری طرف پورا ملک میں زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے۔ اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے، یہ جتنا مشکل تھا مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے، وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا، اس کا بوجھ ایک بار پھر ڈار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، اس قرض کو، اس ایکسپینس کو، اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے، ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا تو شاید آپ کھیل سکتے تھے۔ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے، اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں، اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں، ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلیں، ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں، اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں، آپ نے اب قربانی دینا ہے، اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا، اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہیں تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے، اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دیں، ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دیں، تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے۔ یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں، آج یا کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں، اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئیں۔ جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا، جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا، سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے، آئی ایم ایف۔ سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو، جس کا پالیسی صحیح ہو، تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائیں۔ جی بی آپ کرنا چاہ رہے جی۔ Assalamu alaikum. My name is Aiza Zahir and I am a BS Media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir Income Support Program. میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل، تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز تاکہ اور میڈیم، مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈپینڈنٹ، کیونکہ پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں، مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا، دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے، دے ڈونٹ لائک دے آر ناٹ ورکنگ آن دیئر اون۔ ایکسپلین کر دیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟
No, I'm not aware. आई थिंक ब्राज़ील में भी है. Okay. इसी वजह से वहाँ पे अब वो आया सदर, इस वजह से कह रहा हूँ. एनीवे जी आप किसने एक्सप्लेन पहला करें. जी वो हाँ जी ब्राज़ील में भी नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेन करें. So thank you. आपका सवाल बहुत अच्छा है. तो the Benazir Income Support Program is the first social safety net in Pakistan. और अब ये ना सिर्फ हमारे यहाँ मगर रीजनली एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है. इजिप्ट से लेके फिलीपींस तक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सोशल सिक्योरिटी के कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स का जिक्र करते हैं तो इसी मॉडल को अपनाते हैं. इसमें दो चीज़ें होती हैं. ना सिर्फ हम गुर्बत और महंगाई में हुकूमत की तरफ से माली मदद दिलवा के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं. कि पाकिस्तान में जो हमारे ख़वातीन हैं, जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि शी बिलीव्स दैट अ वुमन कैन नॉट बी ट्रूली एम्पावर्ड अनलेस शी इज़ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. और आप ज़रा जायज़ा करें कि पाकिस्तान भर में किस किस्म का इंकलाब आया जब पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान से लेके साबिक फातह के कबायली इलाकों से लेके बलूचिस्तान के से लेके जनूबी पंजाब के नॉर्दर्न सिंध के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके उनके ख़वातीन के पास ये बैंक कार्ड आया और उनको ये माली मदद मिला. इनको बेकारी नहीं, इसने एम्पावर किया है हमारे ख़वातीन को. इस सपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ वो ना सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे अपने आप को निकालें, इसलिए आपको जो मदद है वो ख़ुद तो नहीं निकाल देंगे किसी को गुर्बत से, बट बिकॉज इट सप्लीमेंट्स दैम. इस सपोर्ट की वजह से वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके. ये सपोर्ट की वजह से उनका गुजारा होता है. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir Income Support Program. इसमें तो ये तो ज़रूर इसको चलना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया वसीलाए हक, वसीलाए रोज़गार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत, और ये इन्होंने साथ साथ चलना था, जिससे हम अगर वसीलाए हक है तो वो बिलासूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिलासूद कर्जे इन ख़वातीन को दे ताकि वो एकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से एकोनॉमिकली एम्पावर करे. वसीलाए रोज़गार इसका एक ऑफशूट था जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके. तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था. इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया. मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुर्बत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं उनको भी हम रिव्यू करेंगे. मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी. वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब यानी रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है. तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात होते हैं चल निकल बारत हों, जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे. मैं अगर आपकी इजाज़त है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस वन इनिशिएटिव. ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था. जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था वो ये था कि मुझे घर बना के दो. तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के कि मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना नहीं हो सकता सर. और मैंने तो ये माना नहीं
اور ہم نے پھر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف منسٹر سمت قائم علی شاہ صاحب اپنے مراد علی شاہ صاحب کو کہ ان دنوں میں ایک طرف ہم ایک دن میں بارش ہو رہا تھا اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے, رات میں میرے ساتھ وہ ورلڈ بینک کے آفیشلز کی ملاقاتیں کر رہے تھے تاکہ ہم پالیسی فریم ورک کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر ورلڈ بینک سے $2 بلین کی فنڈنگ کی بندوبست کی, نہ صرف اس کے لیے پورا سیلاب کے لیے مگر ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا ان گھر کا تعمیر کرنے کے منصوبہ کا, جہاں ہم 20 لاکھ گھر صوبہ بھر میں بنا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے, ان کو کچا گھر تھے ان کو پکا گھر مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو انیشیٹو سندھ حکومت نے اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے وہ یہ جس کا نشرت صاحب ذکر کر رہا تھا, جہاں اس گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. This is now the biggest single asset transfer in Pakistan in a generation. آپ اگر اس اسکیل کا کچھ ہوا ہو تو آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو لینڈ ریفارمز ہے اس تب تک جانا پڑے گا اس قسم کا ایگزامپل نکالنے کے لیے. It is the biggest reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, جہاں ارتھکویک ہوا تھا. ہم ایک طرف سے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنا کے موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالکانہ حقوق دلوا کے ان کا اکنامک امپاورمنٹ اور ویمن امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہے. میں نے اپنا منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان کے غریب ترین عورتوں کے لیے, جو کہ ایک طرف تو گھر کی تھی اپنی, but the point is کہ the asset transfer, the empowerment of the bottom of the pyramid, یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو راتوں رات ان کا اکنامک سٹیٹس میں اضافہ ہوگا. یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, اپنے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے تو اس ایسٹ کو کے ساتھ ایک لون لے سکتے ہیں اور اس پیسہ کو وہ اپنا کاروبار میں یا اپنا کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے جا کے ان کے بچے جو ہے اگر اس ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس طریقے سے اکنامک. So I'm just saying that میرے پاس شاید وہ پیسہ نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. یہ تمام 2 لاکھ گھروں کو جو ہم دلوا رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ لینڈ پہ تھا, اب نہ وہ لینڈ حکومت کا کوئی کام آنا تھا اس لیے لوگوں نے وہاں رہنا تھا کچے گھر میں مگر ادھر ہی رہنا تھا. تو اب ہم نے اس لینڈ کا اکنامک اس لینڈ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہمارا معیشت کو فائدہ بھی دلوائے گا. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی 17 منسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ نے کہا کہ جب بھی ان پر اشرافیہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ریزسٹنس آتی ہے, تو ان کیس یو کم انٹو پاور تو آپ کس طرح سے, ان کیس اگر آپ بھی ریزسٹنس آبویسلی فیس کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کریں گے؟ تو آپ کا سوال تو بڑا ویلڈ ہے. ہاتھ تو صحیح طریقہ تو صرف ایک دفعہ لگا اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا, اور اس کا جواب میں قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. اس وقت جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے عام آدمی کو دلوایا, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن تو ضرور ہوگا, مشکل ہوگا. یہ چینلز جس پہ ویسے ہمارے کردار کشی کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, مزید بات کریں گے ہمارے خلاف. حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے سے زیادہ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, کہ وہ محسوس کرے کہ میرا سٹیک ہے اس چیز. ابھی اگر میں کل اٹھ جائے اور کہوں کہ میں یہ بند کروں گا
और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको, अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब से पैसे वापस लो। छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में। अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं, अगर कोई मुश्किल उसमें है, कोई जेन्युइन रीज़न सामने आता है तो हम एक ट्रांजिशन फेज तय कर सकते हैं कि किस तरीके से, मगर होना तो पड़ेगा। वी कांट हैव दिस डबल। जी आप। Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nai Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो actually हमने specifically जिक्र भी नहीं किया है, तो I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party ने कानूनी लिहाज से रिफॉर्म से इन कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश किया। जो रहते हैं वो भी हमने प्लेज किया है अपने मंशूर पे, राइट्स फॉर ऑल ऑन पेज 30 ऑफ माय मैनिफेस्टो। हम तफसील में जाते हैं कि क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। अगर मैंने एक स्पेसिफिक जो दो चीज़ों को जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो इनके जो ज़्यादा शिकायतें हैं, एक enforced disappearances का और misuse of the blasphemy law का, दोनों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में ये प्लेजेस किए गए हैं कि हम ना सिर्फ enforced disappearance के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, मगर misuse of the blasphemy law के इशू पे भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे ये डाला है कि हम ये दो इश्यूज एड्रेस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ there's quite expansive, I mean वो मैं आपको जी आपने करना था सराइकी है जी, लेकिन करोगी उर्दू में, सराइकी में नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइमा खान है और मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब डेरा गाजी खान से है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि वो सराइकी सूबा बनाएंगे, इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज वेल। तो आप हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर आप इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमें सराइकी सूबा नज़र आएगा बना हुआ? थैंक यू आपके सवाल के लिए। आई डोंट नो एज फार एज सारी सियासी जमातें ने ये वादा किया और शायद, बट जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। हमने जनूबी पंजाब पे हमेशा फोकस किया है, ना सिर्फ आज से मगर हर दौर में। या हम कभी सदर पाकिस्तान बनाए तो वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, I mean that didn't go so well for us, but बन गया। और फिर हमने वज़ीर आज़म
जब बनाए तो मुल्तान से, और आप अगर हमारा जो उन ज़माने का बजट PSDP का एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करें खान साहब के दौर से, मियाँ साहब के दौर से, किसी और के दौर से, जो हक बनता था जनूबी पंजाब का एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान, वो एक दफ़ा पूरा हुआ। उसके अलावा उस परसेंटेज को, आई थिंक इट वाज 31% or whatever the exact number was, उसके अलावा किसी और की दौर, किसी no one has put their money where their mouth is as far as जनूबी पंजाब is concerned। जहाँ तक ये तहरीक है, आपने एक नाम इस्तेमाल किया, लोग डिफरेंट सोच रखते हैं कि कैसे बनेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने इस पे आगाज़ लिया, हमने पार्लियामेंट से जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो लेजिस्लेशन भी की। अगर आप चाहते हैं कि इस पे अमल दरामद हो तो रिक्वेस्ट ये होगा कि हमें वो 2/3 अक्सरियत दिलवाए, जिससे हम आइन में वो तरमीमें कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तब तक करना क्या है, तब तक हमने जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो पसमानदगी है, उसको एड्रेस करना है। एक तरीका ये कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनली जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको वो हक दिया जाए, मगर साथ साथ जिस तरीके से आप चोलिस्तान के इलाका को उठा के देखे, या आप हमारा मीडिया को देखें, जिस तरीके से जनूबी पंजाब को, इनके कंसर्न्स को नेशनल मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से आउट रखा जाता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम तमाम पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी भी रखते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ सूबे बनाने वाली बात है, हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा। जी भाई आप। Assalamualaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest, or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And हम students जो हैं मायूस हैं, तो इस मायूसी को आप किस तरह दूर करेंगे, and what are your plans for that? Thank you, भाई। तो जहाँ तक ये ब्रेन ड्रेन की सवाल है, अगर मायूसी की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, मगर उसके other than that we do have a problem, and that is जो हमारा demographic growth rates है, उसमें जो हमारा नौजवानों का पॉपुलेशन है, जो आप बार बार सुनते हो कि 65% of our population is youth, ये एक डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलवाएंगे। एक तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हम इस तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे मीशत में, हमारे डेवलपमेंट में, जहाँ से हम डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मगर साथ साथ हमें फिर अपना इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। तो मेरी नज़र में एक तरीका है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जहाँ हमारे यहाँ हमारे यंगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चैलेंज ये है। दूसरे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में पूरी दुनिया में, उनका प्रॉब्लम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड वहाँ जो उनके बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जो नौजवानों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत कम है। ये उन ममालिक में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो ना उस पॉपुलेशन उनके पास है कि वो उनकी बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके, ना वो अपने मईशत में वो जॉब्स फिल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो इस डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से मसाइल पैदा कर रहे हैं।
तो मेरा प्रपोजल ये है कि वी मैरी द टू, एंड मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया जब मैं 18 महीने के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था। जहाँ मैं जाता था मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उन ममालिक में रोज़गार करवाने के लिए उस पर मैं उनसे बातचीत का आगाज़ किया। यूरोपियन यूनियन के साथ इस पे डायलॉग या चल रहा है या ये कंक्लूड हुआ। I mean, I can't tell you everywhere. मैं हंगरी गया तो हंगरी में इनका ये यूरोपियन यूनियन में ये मसला था। जापान गया तो पता चला कि इनको सालाना 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. तो अब और बाकी मुल्क में मिडल ईस्ट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वो टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो लो स्किल हो या हाई स्किल हो, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दैट आर नेसेसरी। और साथ साथ मॉडर्न स्किल्स के साथ साथ हमें लैंग्वेज कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई प्रपोज टू डू दिस थ्रू माई यूथ सेंटर्स, बट आई एम श्योर दैट दे कैन बी डन, बिकॉज हमारे बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं मगर दे नॉट कोऑर्डिनेटेड अंडर एनी वन बॉडी। तो हमारा यूथ सेंटर के थ्रू हमारा प्रपोजल ये है कि हम मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें, टेक्निकल स्किल्स दिलवा दें, यहाँ तक कि लैंग्वेज स्किल्स, कि अगर मैंने वो 4 मिलियन जापान का इनको अचानक ज़रूरत पड़े किसी स्किल का, मैं 6 महीने के अंदर अपने बच्चों को बेसिक्स रूडिमेंट्री जापानीज़ भी सिखा दूँ, उनको वो स्किल या उनके पास वो स्किल है पहले से या उनको ये स्किल दिलवा दे और लिंक अप करे कि ये मेरे नौजवान को आप वो नौकरी दे। मैं तो ब्रेन ड्रेन मायूसी की वजह से मैं तो नहीं चाहूँगा कि हो, मगर मैं प्रोएक्टिवली अगर हमारा हुकूमत मिले तो हमारा एक तो नज़र मुख्तलिफ है दूसरी सियासी जमातों से, हम समझते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोएक्टिवली कोशिश करे अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के लिए। वो हम ना सिर्फ पाकिस्तान में करेंगे मगर कायदे अवाम की तरह हम ये कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को वो मौके मिले। जी आप। My name is Mubarak Khan and I am in BS Media Sciences. And my question is, किसी भी जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है, हर पार्टी की ना टारगेट ऑडियंस जो मेन होती है इज़ बेसिकली यूथ। तो आप लोगों ने यूथ को कितने % रेशो सीट्स का दिया है? एंड बीइंग अ विमेन आई वांट टू नो कि उस रेशो में से कितनी सीट्स विमेंस को दी गई हैं, यंग विमेंस को? गुड क्वेश्चन। I wish I had एक तो you'd be surprised to know कि मैं कल ही देख रहा था कि बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स दिए। आई थिंक हमारा परसेंटेज वाइज 18% है और दोनों PTI और मुस्लिम लीग नवाज ने इस परसेंटेज से कम सीट्स दिलवाए हैं। बट दैट्स नॉट इनफ। लुक, आई फंडामेंटली मैं ये बिलीव करता हूँ विद अ पैशन कि जो हुकूमत में आते हैं, ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है। वो जो भी फैसला करे, चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए, ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं, अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है तो हमारे बात तो सुने। मैंने ये प्रोएक्टिवली कोशिश किया कि नौजवानों को मौका दिया जाए। कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम इज़ द लाइक नर्सरी फॉर पॉलिटिक्स। वहाँ मुझे रिसेंटली मौका मिला है सूबा सिंध में, जहाँ सूबा भर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए, तो हमारा मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब recently turned 40, he's young. Mayor of Hyderabad, young. Mayor of Sakhar, Larkana, young. सोच इसके पीछे ये कि अगर नौजवानों को, एक तो मेरिट पे उनके अपने मेहनत भी है, ऐसे भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यंग है तो आप सब आगे आए, मगर साथ साथ कि वो उस अंदाज से काम करेंगे, वो उन इश्यूज़ को सामने रखते काम करेंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे वो एटलीस्ट उम्मीद ये है कि हमें हमारा नुकसान ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ऐसे दी प्रेजेंस, चाहे हमारा टिकट्स भी हमने उतने नहीं दिए जितना हमें देने चाहिए थे नौजवानों को,
اور جہاں مشکل سیٹس ہے یا جہاں ایون پکے سیٹس ہے تو وہاں بھی بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ آپ پیچھے ہٹے, کسی نوجوان کو موقع دے. I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of روایتی سوچ. because ایک چیز ایک طریقے سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے تو some people find it easier کہ ایسے ہی چلتا رہے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, فرق پڑے گا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور I've seen across from sort of the field all the way internationally کہ پاکستان کے نوجوان کیسے کام کر سکتے ہیں. موقع دیا جاتے ہیں تو پاکستان کے نوجوان ڈیلیور کر سکتے ہیں. جی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بہت عرصے سے. And you have to make alliance. If you do that, how are you going to take this nayi soch forward? Because obviously they will be retaliating to some of your ideas. So how are you going to take it forward? So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ایسا ہے کہ چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا شاید ہمارا میں, it was like میری مرضی, میرا سوچ یہ ہے اور یہی اچھا ہے اور اس طریقے سے کریں گے, اور زور زبردستی سے جو ہے the power of the majority ہم اپنا چیز کو عمل درآمد کریں. مگر ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کام لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارا پارلیمانی نظام کا. یہی خوبصورتی ہے ہمارا پارلیمانی نظام کا کہ آپ اس کے بجائے کہ آپ اپنے ہی چیز کو مسلط کریں, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو, جو دوسرے بندہ وہاں کھڑا ہے یا منتخب ہوئے ہیں وہ بھی محب وطن پاکستانی ہی ہیں. اور I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing کہ what they believe is the best way to solve a problem. حقیقت شاید یہ ہو کہ میرا رائے میں اور ان کا رائے میں درمیان میں سے کوئی بیسٹ آپشن ہو. جب آپ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں گے, می ورسز دیم میں تبدیل کریں گے, تو میرے خیال میں اس طریقے سے بیسٹ آپشن نہیں نکلتا ہے. کنسنسس بنانا پڑتا ہے. تو امید یہ ہے کہ آئی پٹ فارورڈ مائی پروپوزل. اگر کسی میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی ان کا بہتر پروپوزل ہے, اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. مگر آئی تھنک دیٹ اٹس ٹائم, وی کانٹ ریمین اے ویلفیئر اسٹیٹ فار دی ایلیٹ and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. مطلب سکلز ہیں, تعلیم ہے, ڈگریاں ہیں, مگر اس لیے کہ ہم وہ روزگار کے مواقع نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اوور کوالیفائڈ پیپل آر ورکنگ ان لوور کوالیفائڈ جابس. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے میرا اپنا پلان ہے. دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر they have to put forward their proposals. اچھا بلاول صاحب, بیڈ نیوز از وی آر لیفٹ ود 3 minutes only. کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے تو ظاہر ہے لوگوں سے جانا ہوگا. تو آپ پہلا سوال کر لیں, پلیز بی بریف. آپ بھی سارے اس کا بریف کر دیجیے گا. اینڈ دیٹ لیڈی, یہ بہت دنوں سے انتظار کر دیکھیں جی. آپ آئی ایم سوری, جی آپ پلیز. My name is Abdullah Athar. I am a student of Management Sciences. Your party has recently announced its manifesto. I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. تو implementation plan یہ ہے کہ حکومت بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرے. اور میں ایکچولی مدد اپنے آپ سے, ضابط سے لوں گا, آپ جیسے نوجوانوں سے لوں گا کہ ہمیں I need ways to think outside the box. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. حکومت کی تو روایتی طریقہ کار ہے. میں اب اتنا عرصہ سے پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں, میں حکومت سے کام نکالنا جانتا ہوں, اور میں نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کیا ہے سندھ میں, کافی کامیابی اس سے حاصل کیا ہے. اس سے میں جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے مجھے مسائل نہیں ہے, مگر مجھے یہ چاہیے کہ we need new ways of doing things. We need جو energy that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں تو میں ضرور
आप जैसे इदारे में दूसरे इदारे में खुद जाके इंगेज करके उन नौजवानों से मदद लूँगा। भाई चूँकि यदि वादा कर चुका हूँ चले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेम इज़ नेहा आमिर, आई एम स्टूडेंट ऑफ मीडियस बीएस। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रही है, सिर्फ यूथ नहीं बाकी भी बहुत से हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, ड्राइव फूड पैटर्न, आए दिन हुकूमत में इंटरनेट बंद हो जाता है और उनका नुकसान होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये किस तरह आप करेंगे हुकूमत में? आपका तो इतना फिट सवाल है, मैं क्या कहूँ। I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok का तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी बात तो करना था सबसे कि मैं इस चीज़ को encourage करूँ। यहाँ तक कि मेटा के साथ उनका जो स्टार्स मोनेटाइजेशन फीचर है, उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं इस फीचर को पाकिस्तान के लिए लॉन्च करूं। मगर साथ साथ जो मैंने उनसे ब्रीफिंग लिया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरा दुनिया भर से हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि किसी चीज़ ने उनके कानून का खिलाफ वर्जी किया है और उसको हमें देखना है। And this happens all over the world, and they say, look, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा पॉलिसी ये है कि अगर हम कोई कानून को तोड़ रहे हैं किसी भी मुल्क में तो उसका लीगल का रेपरकशंस होता है। तो हमें वो मैन पावर की ज़रूरत है कि वो बंदा बैठे और वो एक कंप्लेंट को देखे, सही है नहीं है व्हाटएवर, अपना एक्शंस भी ले। इसके साथ साथ अब हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी खोले, आप वो भी खोले, आप ये भी खोले। And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. कि ये पूरी दुनिया से हमारा जो complaints आते हैं, पाकिस्तान इधर था, and all the way down, as in बाकी कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। And वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि look, you are such a big potential for us, कि इतना बड़ा हमारा population है, मेटा खुद आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए we have infrastructure problems. मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान से पूछे कि कितना तेज़ उनका इंटरनेट वहाँ चलता है। तो we have infrastructure, communication infrastructure digitally, उसका भी प्रॉब्लम है, उसमें भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो कह रहे थे कि हम वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में रुपीस में कॉमर्स की इजाज़त देते हैं। ये हमारे नज़र से हमारे इकोनॉमी, उनका प्रॉफिट मार्जिन के लिए नुकसान है, मगर वो नुकसान उठा के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए। मगर आखिर कहा कि अगर आप ऐसे हमें ट्रीट करेंगे, एक तरफ इतने लीगल पीका की वजह से और ये तमाम कानून की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर आप हमें अपने पैसा जो हम कमाते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लेने की इजाज़त देंगे, तो कैसे ये तरक्की करेगा? पाकिस्तान में जितना डिजिटल मीडिया से, टैक्स से, मोनेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा, शायद कोई और मुल्क है जो इतना फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स के कंप्लेन करते हैं, वो मसला सिर्फ एक इस जगह से हम हल कर सकते, जो रोज़गार के मौके हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बच्चा अपने गांव में बैठ के अपना ऐप बना के कमाना शुरू कर सकता है, और वो भी डॉलर्स में। मेरा जो नुक्ते नज़र है वो इतना कि आप जितने भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करें, कम करें। There's this attitude in Islamabad and Muslim League and the bureaucracy कि अगर कोई अपना मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप उन पे फेवर कर रहे हैं कि वो आके आपके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो this is absolutely the reverse of what is true. आप ये तमाम कानून साजी पे एक दफ़ा फिर से हमें करना पड़ेगा, ताकि आसानी आपके लिए हो, आसानी दुनिया के लिए हो। अब आप सोचे, करने दें इनको, वो जलसा क्या होगा? टिकटॉक पे लोग आएंगे, इमरान खान के नारे लगाएंगे, क़यामत तो नहीं होगा ना। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए, वो दराज का बंदा, वो फूड पैंडा का बेचारा, वो करीम का जो चला रहा है अपना, उसका क्या होगा? This is now it's a new world.
ये काम खान साहब अपने दौर में करता था, उसके बाद भी होता रहा। मेरा कोशिश ये होगा कि हम ये काम छोड़ें, एंड जिसका फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें। जब हम कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, अब वो मोटरवे का ज़माना आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के अवाम को हाई स्पीड इंटरनेट इस मुल्क के कोने कोने पे पहुंचा दें, ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दें और पाकिस्तान के नौजवान खुद हमारा मीशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। भाईजान, मैं आप लोगों को इंतहाई ध्यानदारी से जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि बिलावल साहब गेटिंग सो स्वेड, बहुत मुतासर हुए हैं, लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में विच इज़ ऑनेस्टली इम्प्रेसिव। आई एम ऑल्सो रियली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पर जब वो इंतहाबी मुहिम में हों तो टाइम उनका नहीं होता। इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बार बार मुझे इशारे किए चले जा रहे हैं और मुझे इनसे राब्ते के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वी हैव टू कॉल इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। थैंक यू। Honorable Chairman, what a wonderful talk. My students, they have really enjoyed that.